ऑलराइट ट्रेडर्स, तो आई होप कि आज का आपका दिन अच्छा रहा हो. माइन वाज प्रीटी गुड एंड in morning actually it was a little bit of volatility, but later point of time after 1 hour after 10 it was a pretty stable market. And let's jump to the chart and we will see कि market कैसा था और हमने आज क्या decision लिया. Okay, and let's jump to the chart. Alright, जैसा कि अभी हम चार्ट पे चेक कर पा रहे हैं कि मार्केट आज यहाँ ओपन होता है. ओके, मार्केट डिड ओपन हियर एंड इट डिड gave a really big red candle from the point where we have given the level that was 49,197. alright, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ पूरा डिप करता है. ओके, and it was pretty big candle. I would say it went to 48,900 approximately. So it was approximately 300 point candle. तो जो कि सुबह सुबह में शो किया कि मार्केट में एक बेरिशनेस आज है. बट उसी टाइम पे अगर हम चेक करें, टू बिग ग्रीन कैंडल केम इनटू द पिक्चर. ऑलराइट, सो दीज टू बिग कैंडल केम इनटू द पिक्चर एंड हमने पोजीशन यहाँ पर बनाया था जब ये इसका इतना परसेंटेज आया था. बट ऊपर जाने के बाद में हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ. ऑलराइट, बट दूसरी वाली पोजीशन में बेसिकली बिकॉज ऑफ द दिस वाज काइंड ऑफ जोन, so I did sorted this level call and put. All right, so one position gave me profit, second gave me a loss, so I was overall in a profit of approximately 1300 rupees. All right, but उसके बाद में मार्केट ने फिर से एक बड़ी कैंडल्स बनाया नीचे की तरफ. All right, so by looking at it I was pretty sure कि market is going to like hit the stop loss only. So let's settle up the market, and once market is settled then I will take the trades. After that I did create this trend line here. Okay, so this trend line I did draw कि अगर इसको या तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर एक बुलिश पोजीशन बना सकता था, और अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं एक यहाँ पर बेरिश पोजीशन जनरेट कर सकता हूँ. ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर एक नीचे की तरफ इसने ब्रेक दिया. देन आफ्टर दैट आई वेटेड फॉर इट सो दैट इट विल गिव अ लिटिल रीटेस्ट, एंड देन व्हेन इट विल फॉल टू द डाउन साइड then I will enter. So this was my plan at that point of time. So when market came to this point, so it was basically giving red candles again and again. So I created a position somewhere here, and then market fell to the downside, and then I exited my position approximately at this point. Okay, I exited my position approximately 3 o'clock. Okay, so I made total today approximately 1600 profit. So let's jump to the broker. And yeah, and one more thing I will show you that market was actually trading here at 200 EMA. All right, so market was trading at 200 EMA. Simultaneously on Nifty it was below 200 EMA. All right, so मुझे कंफर्म था कि अगर निफ्टी में एक नीचे की तरफ मूव आएगा तो बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करेगा और नीचे की तरफ एक मूव अच्छा वाला बन सकता है. ठीक है, अभी एक अपने ब्रोकर पे मूव करते हैं और लेट्स सी कि मार्केट में आज किस तरीके का हमने टैकल किया उसको. ठीक है, ओके, सो दिस इज आवर ब्रोकर. आई विल जस्ट लॉग इन. ऑलराइट, सो ये हमारा ब्रोकर है. यहाँ पर अगर हम आप पोजीशन देख पा रहे हैं यहाँ, तो टुडे वी मेड दिस प्रॉफिट 6624. तो हुआ क्या था, सुबह में मैंने ये कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट किया. ठीक है, एंड देन आई वेटेड कि किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम देने वाला है. बट हुआ क्या, दिस पोजीशन गेव मी लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपी. All right, and this gave me profit of 10,000 approximately. So this was some hedge position that gave me some loss. So overall I was in the profit of 1,300 rupees in the morning session. All right,
After that, by looking at the very huge volatility, what did I waited for my movement, and I waited for trend line to break to the downside. Basically this trend line break to the downside, I waited for this one, and then I created a fresh position. I sorted the call of 4809, this one, and the loss that was incurred in the morning session, that covered, and basically it come to the zero profit zero loss, and overall I got a profit of 6624 rupees. This were hedge position, this were supposed to give the loss, because this were providing the hedge to both these positions. Alright, so this is for today live कि आज मार्केट में हमने क्या किया. Alright, now let's move to the chart and we will see कि कल मार्केट में हम क्या डिसीजन ले सकते हैं. ऑलराइट, सो अगर हम बैंक निफ्टी का यहाँ चेक कर पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में दीज आर द लेवल्स कि ये 200 EM में है. तो 200 EM में विल बी प्रोवाइडिंग अ गुड सपोर्ट एज इट हैज़ ऑलरेडी प्रूवन कि ये एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर. और अगर नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ भी हमारे पास इस लेवल पे दैट इज 48,645 एक सपोर्ट लेवल है, दैट इज प्राइस एक्शन सपोर्ट लेवल. ऑलराइट, ऊपर वाली साइड में यहाँ 49,197 पर एक रेजिस्टेंस है, और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल विल बी 49,577. सो दीज आर द लेवल, दिस इज 49,938. तो अभी यहाँ तक पहुँचना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट में अभी एक बेरिश मूव जनरेट हुआ पड़ा है, और अगर यहाँ पर इसने सपोर्ट ले भी लेता है तो इट विल कम हियर एंड देन इट विल टेक अ रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर इटसेल्फ. ऑलराइट, तो मार्केट इस वाले रीजन में, दिस रीजन विल बी साइडवेज रीजन, एंड अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बेरिश मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं नहीं. अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इन दैट केस अबव 49,197, ओके, अबव दिस पॉइंट 49,197 it will be bullish. Basically in this zone it will be bullish, this zone will be sideways, एंड अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो देयर इज अ चांस कि यहाँ पर ये फिर से सपोर्ट लेगा. तो बेरिश का कल सेटअप में नहीं बना हुआ, आई विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ओनली. ठीक है, एक बार निफ्टी का चेक कर लेते हैं कि निफ्टी क्या स्ट्रक्चर बना रहा है अभी में. ऑलराइट, सो दिस इज निफ्टी. सो दिस इज निफ्टी. यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा कि ऊपर वाली साइड में 200 EM में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे रहा है. ठीक है, सो दिस पॉइंट विल बी बेसिकली अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, एंड अगेन दिस पॉइंट दैट इज 22,579 विल बी अ गुड रेजिस्टेंस लेवल बिकॉज इट इज अ प्राइस एक्शन लेवल, and above that 22,763 will be our good resistance point. यहाँ सपोर्ट पॉइंट हमारे पास 22,374 है, एंड नेक्स्ट इज 22,214 जो कि लेवल हम कल भी डिस्कस किए थे. ठीक है, तो अगर यहाँ ऊपर की तरफ कल में ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लेवल्स तक रीच करेगा. ऑलराइट, तो मार्केट में अगर कल निफ्टी ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन कम टू दिस पॉइंट. ऑलराइट, बेरिश में नीचे कोई ज़्यादा हमारे पास स्कोप है नहीं, तो इट कैन बेसिकली गिव दिस मूवमेंट ओनली. सो इफ 200 EM में प्रोवाइड अ नाइस रेजिस्टेंस, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, it will basically be a sideways in this region. Alright, so if you get a breakout of this one, you can create a bullish position at that point of time, and if it gives a resistance at this point, you can round off your position. Alright, so this was a brief discussion about Nifty and Bank Nifty. Let's move to the OI charts and we will see कि market का OI किस तरीके से behave कर रहा है. Alright, तो पहले अगर हम बैंक निफ्टी का चेक कर पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी is basically showing 49,000 as a max pain level, and there is a huge call and put writing. Alright, PCR को अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो PCR is 0.61, that shows market bearish structure. Alright, तो मार्केट में अभी बेरिश मोमेंटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है.
अगर 49,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर कोई ज़्यादा हमारे पास सपोर्ट है नहीं, तो नेक्स्ट लेवल विल बी डायरेक्टली 48,500। ओके, ऊपर वाले में फिर भी एक सफिशिएंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में अगर पीसीआर का हम चेक कर पा रहे हैं तो पीसीआर शो कर रहा है कि इफ दिस लेवल broken to the downside, in that case we will be able to achieve this 48,500 k levels easily in the market. All right, let's move to the nifty कि निफ्टी का किस तरीके का स्ट्रक्चर है। निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर चेक कर पा रहे हैं तो हायर लेवल्स पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, हायर लेवल्स पे अगर हम बात करते हैं 22,500 से 22,800 तक एक अच्छे लेवल के रेजिस्टेंस बने हुए हैं। इवन सिग्निफिकेंटली पुट राइटिंग जो है वो कम है, अगर हम कॉल राइटिंग से कंपेयर करते हैं तो कम है। और पीसीआर की अगर हम वैल्यू चेक कर पा रहे हैं तो 0.62, दैट शोज ह्यूज बेरिश स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ऑलराइट, तो अगर नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक होता है दैट इज 22,500, तो एक बेरिश मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है एंड वी कैन इवन अचीव 22,000 के लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट सपोर्ट अभी देखने को नहीं मिल रहा है हमें। ऑलराइट, नाउ वी विल सी हाउ FII DII डेटा इज सेइंग। ऑलराइट, सो यहाँ FII इज बेसिकली बुलिश ऑन ऑप्शंस एंड प्रो लेवल्स आर बेरिश। ऑलराइट, अभी हमने OI डेटा में भी चेक किया कि मार्केट अभी एक बेरिश स्ट्रक्चर शो कर रहा है जो कि पीसीआर भी बेरिश दिखा रहा है। एंड अगर हम कॉल एंड पुट राइटिंग की बात करें, पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग का हम बात करते हैं तो दोनों हमें शो कर रहे हैं कि मार्केट में अभी एक बेरिश माहौल बना हुआ है। ऑलराइट, तो यहां से भी हमें देखने के लिए यही मिल पा रहा है कि मार्केट में अभी बेरिशनेस तो है। ओके, तो एक बार ट्रेड को समराइज कर लेते हैं कि ट्रेड में क्या हो सकता है। अगर निफ्टी का हम चेक कर पा रहे हैं तो निफ्टी इज showing this resistance level. So resistance level is here, this one. So that would be 22,500 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस है एंड 22,580 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो अगर मार्केट नीचे खुलता है तो देयर इज अ चांस कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक ऊपर की तरफ नहीं करता है, बेसिकली मार्केट इज राइट नाउ इन दिस वन, अगर जब तक इसको ब्रेक ऊपर की तरफ नहीं करता देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है हमारा बेसिकली 22,375 से यहाँ 200 EMA का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 22,214 के लेवल्स को हम इजीली अचीव कर पाएंगे। जब तक इसको नीचे की तरफ नहीं ब्रेक कर रहा है तब तक कोई भी बेरिश ट्रेड ना ले। ऑलराइट, तो अभी हम कल के लिए ट्रेड किस तरीके का प्लान कर सकते हैं। निफ्टी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि 22,350 के हम पुट सेल कर सकते हैं एंड दिस लेवल दैट इज 22,500 के कॉल सेल कर सकते हैं। ऑलराइट, इफ मार्केट ब्रेक्स टू द डाउन साइड वी कैन एग्जिट दिस पोजिशन एंड इफ मार्केट ब्रेक्स टू द डाउन अपसाइड वी कैन एग्जिट दिस पोजिशन। ट्रेड के लिए अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है 200 EMA दैट इज 48,850 आई वुड से का पुट सेल कर सकते हैं एंड ऊपर वाले लेवल्स पे 49,100 का कॉल सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इस वाले लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम इस वाली पोजीशन को एग्जिट कर देंगे एंड अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो देयर इज चांस कि यहां से सपोर्ट लेने के बाद में फिर से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर मार्केट इस वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, इन दैट केस वी विल एग्जिट दिस पोजीशन एंड वी विल let it run the call side. Alright, so this is tomorrow's plan. Do not go naked selling. Okay, if you are doing selling, so go hedge selling. Alright, hedge your options with 20 premium options. Alright, do not go naked selling, that could be very dangerous for your capital. Alright, so this is tomorrow's plan.